पहला सवाल तो है जी, आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे आप गंगा नहर के मालिक हो। एज ए सेवक, एज ए पब्लिक सर्वेंट आप काम मिलता है। मीटिंग होती है बुधवार को, किसान आए होते हैं, आप जाते हैं। इनको भी जान प्यारी है, इनको भी जान प्यारी है। इतना भी हमारा एरिया अराजक नहीं है कि आप गले पड़ेगा। जान प्यारी वाला इशू थोड़ी है। तो फिर ना जाने का चिट्ठा क्या आपका? ना जाना, मैं तो वहीं बैठा हूँ। मीटिंग में तो पहले कह रखा है कि 10:30 से 11:30 आता डिस्कस कर लेंगे। मीटिंग के टाइम में तो केवल कमेटी वाले बैठे हैं, तो आपको इनको ही पता है। यही बात ये होता क्यों है, ये दिक्कतें आती क्यों है? मैंने पहले दिन बोला था, आपकी कामयाबी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन किसान नाम मात्र आएंगे मीटिंग में। लेकिन किसानों का लगातार आना और वाजिब सवाल लेके आना, कोई नहर पहले खोली जाती है, कोई नहर लेट की जाती है, और बारिशों के पानी होते हुए भी जेट और फार्म डबल बाइंड निकल जाती है, तो किसान क्यों आएंगे भाई? आने का किसने मना किया? तो आप बुला रहे हो तभी आ रहे हैं ना वो। अगर आप सही तरीके से ड्यूटी करो, पॉइंट सब डिप्लीट हो जाते हैं आपके, कभी पॉइंट ओवरफ्लो हो जाते हैं आपके। इन सबको संभालना किसने है? लाइट तो है नहीं ये कि स्विच ऑन किया और पानी आ गया। चांडे साहब 18 घंटे पानी लगते हैं, अखा है 45 आटी से 18 घंटे में सारी मॉनिटरिंग की है। रेगुलेशन डिपार्टमेंट की करता तो क्या थी पीएस वाला मैटर, 1867 पानी था और वो ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਚਾਂਡਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 3:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ, थोड़ा पीछे लगी जाए कोई पहले नहीं वो ले जाने एक मिनट, वो भी ले जाएंगे। मैं जरा राजू जी वाला सवाल है ना पानी दे पहुंचने वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੀਐਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਡਬਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਏਜਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਜੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੁੱਲ ਜੇ। ਤੇ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਲਤਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਚੁਕਾਓ, ਜੀਜੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰੀਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੀਐਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਟੱਪਣਗੇ, ਪੀਐਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪੀਐਸ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 3:30 ਵਜੇ ਵੀ ਪੀਐਸ ਡਬਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ 50 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 3:30 ਵਜੇ, ਔਰ ਪੀਐਸ ਦਾ ਪਾਣੀ 160 ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਐਸ ਦੀ ਡਬਲ ਟੱਪਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ 3:30 ਵਜੇ, ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਨੇਤੇ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੋਗੇ ਡਬਲ ਟੱਪ? ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਚਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ 2-3 ਹੈਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਸਕਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਕਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਗੇਜ ਉਛਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ 50 ਕਿਊਸਕ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪਾਉਂਡ ਉਛਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਵੀ, ਉਛਲੂਗਾ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 45 ਆਰਡੀਪੀਐਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
गेज तो है। तो फिर आपका तो अधिकारी कह रहे हैं, बोलो। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। किस पे? मैंने परसों अजीत जी को फोन किया था, वो कह रहे सर मुझे नहीं पता, इन्होंने फोन किया और इससे पूछ ले। वो कह रहे हम कालू वाला हेड पे एक गेज है जो सही है, उसी से हम सारा गंगना का रेगुलेशन चला रहे हैं। मैंने कहा आपने मांग क्यों नहीं किया आज तक? कहाँ वाला कह रहा है? जीजी वाला नहीं, अजीत जी है रेगुलेशन सुलेमान की नीति वाला। देखो, कालू वाला की गेज से तो वो होता है कि जो पीछे की नहर है ना, जड की और उसकी, वो उससे मेंटेन होती है। ऐसे शिवपुर वाले से YOD जो छोटे डी वाला है वो होता है। ऐसा तो हर हेड पर गेज है। अभी लगवाई थी नहीं, पिछली बार ही, पहले नहीं थी। गेज तो है सर, गेज है। तो आज सुबह की आप मैं बता देता हूँ आपको, अगर गेज है तो आज जीजी नहर पे तो टेले मर रही हैं। सुबह उनका पौंड टूटा हुआ है और वहां जाके सलेमान की हेड पे आपने जरा छोड़ दिया उसमें 50-60 बीबी का रात से टूटा हुआ जी, रात से रोज कभी पानी घट जाता है, कभी पानी बढ़ जाता है, कभी तेल 8 हिस्से, कई तेल 12 हिस्से। ऐसे कैसे सिस्टम चलेगा भाई साहब? नहीं अभी तो नहीं टूटनी, अभी तो कंटिन्यू पानी। नहीं सर, अभी की नहीं जी, रात की तो करते हैं। रात सीगा जी। बीबी में आज ही 8वीं बार लगातार पानी, इसी बार पर मंगलवार पर आज फिर बैलेंस खोल दिए गए सुबह। 50 वो पीछे से 2223 से 2821 हुआ ना, नहीं हुआ, पर पानी अपने कहाँ जाएगा? ऊपर कंट्रोल करते या कुछ भी होता है। ऊपर कर लिया, फुल है। पर सुलेमान की में फिर पीछे नेते वाले पर तो अपना पौंड टूटा हुआ है, जीजी मर रही है और नीचे बीबी में बैलेंस दे रहे हैं। हाल तो भाई 10 पर गल एक मिनट सवाल है भाई जी, जीजी वाले पहली बात कर लिया। वही तो करनी है। तो जीजी वाले पे कर लिया पहली भी। जीजी में लगातार एक हफ्ते के अंदर सर 10 बार पानी कम ज्यादा होता है, और वो भी कहाँ एंड पे। हम रोज आके करवाने हैं पूरे 565 से लेकर 5-8 तक की गेट में ये चलता है। 565 से 5-8, कभी 565, कभी 570, कभी 575, कभी 5-8। अगर 5-8 करते हैं तो जीजी की पौने तेले सारी फिल 5-8 पूरी है बिल्कुल। तो बहुत बार कहती है कि 5-8 होती हैं, तो अगर ज्यादा है तो चेक कर लो। नहीं साहब, ये जीजी वाले खड़े ये कह रहे हैं 2 बारों पर तो हो जाता है। छोटी चीज मेन बात तो ये है ना, क्यों 2 बारों पर कैसे हो जाता है? और 2 बारों के नाम नहीं लूंगा। पौंड खाली है, ये कह रहे हैं 2 बारों पौंड पर खाली है, बीवी में पानी जा रहा है, बीवी में 5-8 दिन पहले लाभ सिंह जी आया था मैसेज ग्रुप में, आप भी थे। और पौंड पानी कम है, मैंने कहा अभी चेक कर लो। फिर आया कि कोई गाय फंस गई थी, पानी पूरा है। वो हेड पे था जी। जहाँ का भी था, कोई मैसेज आता है, जब भी कोई अध्यक्ष भेजता है उसको तुरंत चेक करा लेते हैं, क्योंकि पौंड वाली जो चीज है प्राइवेट आदमी है। पर अभी जो कल परसों की बात, अभी तो स्टेबल चल रहा था पानी, सही चल रहा है, कल नहीं आई। पीछे से कोई एक तो ना, कोई नहर खुल गई, बंद हो गई, उसमें भी चलो कंफ्यूजन हो गया। अभी 2700 कर रहा है, कोई नहर खुली भी नहीं। कल परसों अभी पूछ लेते हैं उनसे, अभी तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। रात की बात है, 5.6 जी आप फोटो, और ये पूरी करवा के जाते हैं, उसके बाद फिर कम कर देते हैं। रात की फोटो आई रात की ये फोटो तेला दी भी होगी क्या फोटो? 5-8 ਦਾ ਜੈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। 5-8 ਦਾ ਜੀਜੀ ਦੀ ਗੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚਾਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। 5000 ਬੰਦਾ ਹੈਡ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5000, 150 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਬੰਦਾ 5000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ 5000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। तो फिर असि आपे वो साइन ज्यादा सानू 7 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 5000 ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਜ 5-8 ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਤੇ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ 5000 ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣ ਕੇ 10000 ਨੌਕਰੀ ਬਣੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਵਾਲਾ 5000 ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਡ ਤੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਹੈਡ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ, ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਗੇਜ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦੋ 20,000 ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਲੇਬ ਨਾ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। वो सिस्टम बन जाएगा। मैं ਦੱਸਦਾ ਜੀ बात सी 20 अधिकार तो नौकरी वापस कब पड़ी करे गलती कटा बाहर ਬਸ सरकार ने हमने नौकरी 5000 दी है कर दो। डरी को नहीं जाने साहब अंदर के 4,000 काट दो। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੋਲ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਲਟਾ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ये जो मैं मुद्दा समझ पाए हो ना ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ये जो स्टाफ है ना नीचे ਉਹ वाला ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। नीचे वाले स्टाफ को कंट्रोल करने वाला ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ कंट्रोल तो यही करेंगे ना। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਖੁਦ ਸੀਰੀਅਸ करनी है आप क्लिक करूंगी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹੈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ING ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਇਹ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੱਸ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? भाई ठेकेदार को तो बुला लिया, जो प्रोविजन में था, जो 5,000 की बात है, कलेक्टर साहब भी गए थे, मंत्री जी भी गए थे ऊपर। अब उसमें क्या है नीतू सिंह यार एक मिनट यार इस बार तो उनको अभी भी ऐड करा दिया है। जो एक तो मिनिमम वेजेस लिखेंगे, मोबाइल प्रोवाइड कराएगा, जो एग्रीमेंट में नहीं है उसको हम धक्के से नहीं कर सकते। फिर ये बात हुई सारे आदमियों को यहाँ से, उसने कहा हमारे उसमें लेबर तो है नहीं, हेड के लिए सुपरविजन के लिए आदमी चाहिए, तो ये लग गए सारे कि हमें लगाओ ਕੱਟ ਦੇ पहले। अब ये मेरे पास भी आया था वेज बना, उसने सबको हटा दिया कि मैं अपने मेरे पास हनुमान करके हैं ठेकेदार, वहां से आदमी जाऊंगा। उन्होंने कहा हमें तो आदमी लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और उससे सर्टिफिकेट चाहिए जो अभी मिनिमम वेजेस का है, जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा नहीं हुआ। लेबर में लिखा है पर स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हमारे लेबर प्रोवाइड करवाने वाला नहीं है। अगली बिट में तो अप्रैल मार्च में जो लगेगी फरवरी में, उसमें तो ये सारी चीजें हमने उसके पहले ऐड करवा दी, तैयार कर दिया। लेकिन धक्के से करेंगे, फिर वही आदमी वापस पहुंच गए उसके पास, हमें लगना है। तो अगले साल से मार्च से तो स्थिति वापस नहीं लगवा देंगे। अब जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आप 5000 वाला बंदा पुट्ठा ज्यादा मिल ला लो। बिल्कुल लगे जी भाई लग 5000 वाला साहब वापस जा रहा है, मुझे लगाओ। कारण तो कोई है ना। नहीं सोल्यूशन मैंने पहले देखो कब थोड़ी होते कोई नहीं देखो 2 चीज है, मैंने पहले भी कही क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर है, रेट फिक्स कर देंगे। मैंने ये पहले भी कहा था, हर नहर के जितने अध्यक्ष हैं अपने 3 आदमी दे दो। नहीं ठेका प्रथा खत्म ही क्यों ना की जाए? आप सरकार को नियुक्तियां करे, पहले बेलदार की नियुक्तियां थी ना, वो हो जाए तो फिर अलग चीज है। सरकार नियुक्ति करेगा जो ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਏਜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੌਣ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਏਜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ, कौन कॉन्ट्रैक्ट सुन तो लो ना। एएन एससी मैं कहना प्रोफेसर नहीं यारो ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੱਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਥੱਲਿਓ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 40 50 60 70 ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ
ਸਵਾਏ ਗੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਸਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੈਡ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦਿਆ ਹਰ ਹੈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੀ है सरकार ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। हाँ जी लिख दिया पूरे, इन्होंने मांग भी लिया, प्रक्रिया भी चल रही है, वो भी सरकार सारे हमने डिटेल भेज दी, इस हेड पे इतने किलोमीटर पे इतने बेलदार चाहिए, पूरी प्रक्रिया में है। बेलदार का तो पद खत्म कर रहे हैं। वो तो खत्म हो ही रहा है, डाइंग पोस्ट है, जैसे रिटायर हो रहा है पोस्ट खत्म है, पोस्ट क्रिएट करवानी है, खाली थोड़ी है, पोस्ट क्रिएट करवानी पड़ेगी। अच्छा अब सुन लो जी, कुछ सवाल है। अब जो सवाल तो अब सिस्टम से है, सरकार से है, वो तो प्रधान जी करेंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब इस वितरण के चेयरमैन और मैं संगठन की तरफ से नॉमिनेटेड बैठता हूँ। वहां तो हमारे कुछ रेगुलेशन को जब सवाल उठते हैं ना जी, जनता संगठन को सवाल करती है और संगठन कल से प्रधान जी हमें खींच जवाब दो, जितने जवाब दे आप होना जी उतने जवाब दे मैं और चेयरमैन साहब भी यहाँ। हमसे भी ये सवाल आपसे नहीं अकेले कर रहे हैं, हमसे भी कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम अपने सबसे सवाल क्या है वो मैं बताऊं। पहले तो उन्होंने सवाल ये था भी एच पहले खुली 3 घंटे और पौंड टूट गया, खखा का डिप्लीट हो गया। अपने पास ये सूचना थी कि इतने घंटे पहले पानी आरडी से 45 से कम हो गया और उसका इफेक्ट इतने घंटे बाद खखा पे आ जाएगा। और उस दिन आप जैसलमेर थे सारे, किसी अधिकारी ने पौंड नहीं संभाला। वो पौंड अगर बच जाता तो जेड कुछ घंटे पहले बचाई जा सकती थी। मैं ये नहीं कहता 21 की 21 बच जाती, पर 10-12 घंटे पहले बच जाती। वहां पर जहां एच खोली गई वहां पर एच वाला अध्यक्ष अपने को हर बार एतराज करता है कि मेरे यहाँ से 10 में से 8 या 9 बारियां लगेंगी, यहाँ मत खोलो। 9 मुँह 8, ठीक है जी। तो एच पर तो वहां जहां खुली ज्यादा बारियां लगी और साथ में अपने हमें गाड़ियां पड़ी कि जी ये बार बार खुलवा रहे हैं और साथ में जेड मरी। पहला सवाल। अब या तो 1 बाय 1 इसका आप बताते अपने तो अपने डिस्कस हो भी गया था, नहीं अपने तो हो गया था जी, ये तो हमसे भी पूछ रहे हैं। इनका सवाल तो हमारे तक भी है जी, इनका सवाल तो ये हमारे तक भी है भी। जब ये हो रहा है तो आप कहां बैठे हो, आप क्यों नहीं बोलते? ये सवाल अकेला आप तक नहीं है, ये तो हम तक भी है। हमें गाड़ियां, आपको पता है जी इस बात का, इस बात की गाड़ियां चेयरमैन साहब को भी पड़ी, हमें भी पड़ी, संगठन को भी पड़ी। रोज नहरें 6.5 दिन से पहले खुलती हैं डेली, और पिछले सेशन में मैंने देखा था कभी कोई नहर 6.5 दिन से पहले खुलती थी। अब रोज ही पानी बढ़ गया जी, खोलनी पड़ेगी। पानी कहाँ डालें? बढ़िया सिंपल सा आपका जवाब होता है, पानी वाली कितने पाइए जी, दसो कैलकुलेट करना है क्या? पर एक बार हो जाए, 2 बार डेली 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 रिपीट हो जाएगा। मैं उसमें ये समस्या 2 में है। एक तो पौंड की आ रही है। देखें पौंड अपने पास 2 आदमी अपने को लगाने पड़ेंगे जो पानी की रीच के मुताबिक अपडेट करेंगे। देखो अपने तो एक दिन पहले बता देना चाहिए ये नहर खुलेगी और ये बंद होगी। ये बात है। मान लो चेयरमैन साहब पानी बढ़ता है 12 बजे बढ़ गया आरडी 45 से, तो अपने को पता है कि 16 घंटे में ये कखा में आ जाएगा, इस 19 घंटे में शिवपुर आ जाएगा, 21 घंटे में काड़ुवाड़ा आ जाएगा, 24 घंटे में ये जीजी पे आ जाएगा। अगर मान लो अगले जीजी खुलनी है तो हम 24 घंटे पहले बता सकते हैं कि इतना पानी बढ़ा है और इतने बजे जीजी पैड पर पहुंच जाएगा और इतने बजे ये खुल जाएगी। अगर पानी कम हो गया तो अपने को पता है कि इतने घंटे में इसका इफेक्ट इस नहर पर आ जाएगा और अपने पहले बता सकते हैं कि ये नहर जो है ना वो बंद हो जाएगी। जब तक आपका अपने को तो मीटिंग में बैठे नहीं पता अभी पानी अपने कह रहे हैं आपकी डबल जाएगी और वो नहर पहले खुल रही है। उसमें सर जो इसका मतलब ये है जी अपना जो हेड पर जो लोग ये मॉनिटरिंग करते हैं वो अपडेट नहीं है, 0। देखो 2 चीज है, वो तो चलो हेड पे तो सब ठेकेदार के हाथ में है। ये जो पौंड वाली बात है ना, वो आपको पता है दोनों बंदे नए हैं। उस दिन भी यही बात हुई थी, पहले जो ट्रेंड की वो भाग गया, सारे नए। ये क्या दिक्कत है जी, भाग क्यों रहे हैं? अब ये हम सरकार से नहीं जो सरकार इनको ट्रांसफर करती है, कहा दिया प्रधान जी जी सरकार ट्रांसफर कर दी है ना था मान लो 200 ਬਣਾਵੇ वो क्यों भजाउंदी है सानू तो दसे इस बात इसे डिजाइन ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ इसकी डिजायर भी जाता होगा। और मैंने स्टार्टिंग से ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ डिजायर ਦੋਨੇ ਬਣੇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੌੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਆ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਦਦ- ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ भाई बात सही है। अभी तो इस बार तो ऐसे ट्रांसफर हो गया, हमें पता ही नहीं था कि 2 ऐसे प्रोबेशन साहब- पीरियड में कभी होते नहीं है। 2 ऐसी साल साहब- भारत में आए थे। जवाब तो ले लो। तैयार है ना ऐसी सब आप बात को घुमाओ मत। हम्म। जो आप कह रहे हो ना अनट्रेंड है, अनट्रेंड वाली बात नहीं है। Means ये मेरे देखो- 3 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। कि मैं उसी बात पे लेके आता हूँ आपको। जिस दिन बीबी नहर को बंद किया है और जी रेगुलेशन वाले कह रहे हैं स्पेशल हमने डिस्कस किया आपसे, वो तो अनट्रेंड, आप तो अनट्रेंड नहीं हो ना। आपने उनसे कैसे बंद करवा दी, बीबी नहर को बंद करवा दिया और उसके तुरंत 3 घंटे बाद ही पानी आपके पास इतना ओवर हो गया, आपने पीएस भी खोल दी, पहले जीजी भी पहले खोल दी। आपको तो जानकारी थी ना, वो तो अनट्रेंड है। 21 तारीख की बात है। 21 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। 4 घंटा पहले जीजी को बोल दी। अनट्रेंड ट्रेंड की क्या होता है? मेरे को तो वही बताएंगे पानी कितना है, मुझे पता नहीं। फिर मैंने बाद में पूछा, उन्होंने पौंड कर रखा था खक्खा पे। बिल्कुल ठीक है, खक्खा का पौंड रिलीज हुआ तो पौंड तो कर लिया, तो डिस्चार्ज तो उतना ही रहा और पानी ज्यादा आ गया। वो हमें ये सारे ही बैठे, हम भी बैठे थे, हमने ही मना किया उनको भी नहीं खुलेगी पीएस। सर 21 को सुनो सही भाई, मैं कोई चीज जो बताएंगे हमारे रेगुलेशन वाले सब इतना पानी आएगा उसी पे हम आगे स्टेटमेंट पानी करेंगे। तो आपने बताया ना, हमारी बात नहीं है। तीनों चारों हम सारे ही बैठे थे, हमने नहीं बताया। इन्होंने दसा पानी है नहीं। सोर्स ही है वही तो कह रहे हैं ना सर 21 तो को। ये सारा वही है कि पहले वालों को पता था कि इतना पानी जाएगा, तो उनको पता ही नहीं। फिर बाद में पूछा भी ये चीज कि साहब वो पानी आ गया था हमको। सर ऐसी बात नहीं है, 21 को बीबी बंद होना था, 20 को मैंने विनोद जी से बात की, अजीत जी से बात की, चेयरमैन साहब से बात की कि जितना भी हो सकता है बीबी को आगे बढ़ाओ, पूरी गंगा नहर को फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे, उन्होंने भी कहा कोशिश करेंगे। जब बीबी को आगे बढ़ाना था उस टाइम 12 फुट पौंड था शिप्र पे, खखा पे, तो उस पानी को क्या यूज क्यों नहीं किया आपने? चलो नहीं किया कोई बात नहीं, फिर आपने पीएस को पहले खोलने के लिए उसको यूज क्यों किया? देखो उस पौंड से नहीं, वो तो पानी जब पीएस नीचे पहुंच गया, पौंड रिलीज कर दिया, पानी बढ़ गया, उसको खोला उसने, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। होगा सर वही बता रहा हूँ बुला आपको। लेते हैं अभी। जब बीबी बंद हुई है ना सर, पानी था 1770 क्यूसेक, लगभग 1 मिनट सर, 1850। और जब जीजी और शाम को पीएस खोली है दोनों, कहाँ पे पीएस हेड है, पानी था उस समय 1957 क्यूसेक। कितना पानी बढ़ा सर? 180 क्यूसेक। नहरें कितनी खोली आपने? 360 क्यूसेक। तो 180 पानी कहाँ से आया? मेरी बात सुनो कि आप खक्का हेड के पानी से इसको कंपेरिजन नहीं होता। वहां तो पानी बढ़ता है, पहुंचता कब है? नहीं ट्रेवल जी तो बहुत पहले कटी है जो समझे जी। पानी ट्रेवल में चल रहा है ना, वो अलग है, नहीं। बढ़ा हुआ अलग है। भाई पानी तो उतना ही है जितना आ रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ है कि भी उसमें सोचा नहीं, उस समय तक भी नहीं बताया कि हमने इतना ट्रेवल नीचे चला गया पौंड में, नहीं देखा। सर वो एक मिनट, एक मिनट वही तो- एक मिनट यार। प्लीज प्लीज आप कह रहे हो गेजे हैं सभी हेडों पे, अगर गेजे हैं तो फिर पानी कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा? ਰੋਕ 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 ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੜੀ ਘੋਲ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰ, ਇਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਪੌਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਂਡ ਡਿਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਾਹ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਗੱਲ ਦਿਓ? ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। बंदे तो है ही नहीं। ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੌਂਡ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਨੇ। ਜੇ ਘੱਟ ਨੂੰ ਸੰਸਾਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? लिखा ही हुआ है चीफ साहब, मैंने एडिशनल चार्ज के लिए भी भेजे हुए हैं प्रपोजल। देखो पहले क्या होता था, 3 एरिया होते थे जी, अपने अपने उनके एरिया फिक्स हैं, वो अपने अपने पौंड का कुछ भी कम बताते थे। अब एक ही आदमी यहीं से मेंटेन करता है। अजीत भी आपको पता है पदमपुर है यहाँ, तो फिर उसको मैंने यहाँ लगाया हुआ है क्योंकि सारा काम इसका मतलब ये आदमी नहीं है? यहाँ का है, खाली है पोस्ट। बोलो जी। गंग नहर के एएन की पोस्ट है ही खाली है। सिटी नोट कर लो। रेगुलेशन, अरे सुनो सही, हाँ। रेगुलेशन डिवीजन में ही
पदमपुर भी है यही है, हाँ। यहाँ भी है शिवपुर। हाँ। पदमपुर वाली भरी हुई है नहीं तो आपने तो चार्ज दिया ना इसको, है आदमी तो नहीं है। रेगुलेशन वो में तो पदमपुरी होता नहीं है। है, तो रेगुलेशन डिवीजन में ही। हाँ अब जैसे नॉर्थ में भाई मैं मान गया, पद्मपुर है ना उनकी ड्यूटी तो। इसी पे पदमपुर डिवीजन है, तो इस गंग के उस पदमपुर रूटीन वाले में नहीं है। मैं अरे मेरी बात सुनिए, पदमपुर रीजन तो अलग है, हाँ रेगुलेशन की पोस्ट एक शिवपुर हेड पर है, हाँ एक गंगानगर है, हाँ। 3 सब डिवीजन बने हाँ, हैं हाँ, शुरू से। ठीक है। एक पदमपुर है, हाँ तो शिवपुर और गंगानगर वाली खाली है, पदमपुर वाली वही तो मैं कह रहा उसको हूँ ना मैंने जी। यहाँ इसलिए बिठाया नहीं, यही तो मैं कह एक रहा ही हूँ। एएन है 3 की जगह, तो उसको इसलिए यहाँ बिठाया क्योंकि यहीं सारा रिकॉर्ड होता है, अपने डिस्कशन भी यहाँ करेंगे। मैं आपकी बात मान गया, मैं तो कह रहा हूँ 3 एएन की जगह 1 है। अब 3 आदमी का काम 1 आदमी करेगा तो नहर कैसे चलेगी, मुझे ये बताओ। ये जिम्मेदारी सरकार की और विभाग की है, हमारी नहीं है। जेईएन कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी, एक है। इनकी टेंशन है जी। 6 जेईएन की बजाय 1 है जी। सुन लो क्या ऑन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास ऑर्डर नहीं आए हुए सरकार के? क्या ऑन यार हैरानी की गल है, 6 जेईएन की जगह 1, 3 एएन की जगह 1। हमारे यहाँ सब जगह ऑर्डर आए हुए हैं। कर्मचारी कम है। हाँ 9 बंदे का काम 2 बंदे कर रहे हैं। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀਕੇਐਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। 6 जयन में एक जयन है। और देखो सर एक सवाल और है, क्या चेयरमैन और किसी अध्यक्ष के पास पावर है कि वो किसी नहर को बंद कर सकता है या खोल सकता है? कमेटी करेगी नहीं, पावर तो देखो म्यूचुअल है चीजें, तो अगर इनको लगता है कि पता हमें नहीं पता है बताएंगे तो बंद तो नहीं नहीं, करेंगे बात। ये पावर आपके पास है या चेयरमैन साहब नहीं के पास? हमारे पास ही है। सुन लो आप सुन लो जी, पावर सारे कह रहे हैं जी पानी चेयरमैन ने घटाता, चेयरमैन ने बताता। एसपी साहब बैठे हैं, खुद कह रहे तो हैं ये तो कि मैंने पावर भी हमारे पास है नहर को छोड़ने की, बंद करने की। नहीं छोड़ने बंदे की मीटिंग में तय हो गई, मीटिंग में भी बात हुई, मेरे पास कई फोन भी है, तो मैंने साफ कह दिया चेयरमैन के पास ये कोई पावर नहीं है कि मेरी नहर खुला दीजिए। पीएस पे मेरे पास बहुत फोन आए थे कि चेयरमैन ने अपनी खुला रखी है, मगर चेयरमैन ने कैसे खुला दी थी? पानी है तो कमेटी डिसाइड करती है, पानी के हिसाब से हम करते हैं। साहब चेयरमैन की बात करते हो, जीजी नहर पहले खुल गई, मेरी बारी है, मैं वहां का ब्लॉक देख लूं, मेरे पे इल्जाम लग रहे थे, फिर पहले कैसे खुलवा दी? आपने खुलवाई है। कभी मैंने आपको फोन किया है? ये मेरे तो मेरे ख्याल स्पष्ट से मैंने है, कभी फोन नहीं किया। चेयरमैन हो कोई चेयरमैन की अध्यक्ष हो, बात दूर है। वो नहीं खुला सकता, ये स्पष्ट है। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 200 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਐਫਐਨਆਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਟਾਫ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, सिस्टम से चल रहे यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गंग का नाम एक जीवन का नहीं है, सारा है गंग का नाम है कि इसे ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं क्योंकि फोन करूंगा कि सुनूंगा ही, जो फोन करना है नहीं कि सुनूंगा। चलो चलो एक और भी है जो आपका हेडो का जितने हैं इसके ग्रुप है उसमें कम से कम 2-3 जने तो रेगुलेशन वाले ऐड करो। हमें तो पता तो चले ना हेडो का, हमें पता ही नहीं चलता कि आप हेडो वाला जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें गेट डालते हैं, हेडो भी कहीं भी है ही आपस में भी नहीं उसमें नहीं, पर उसमें डाले तो नहीं ना, आपको डाले हमें डाले। एक एसपी साहब 45 की है बस, 45-60 यहाँ की भी है, एसपी साहब यहाँ वाले जो है बने हुए जिसमें डालते हैं उसमें पता ये आपको नंबर का कटे दे रहे हैं जी, हमें सूची चाहिए कितने कहाँ कितने पद खाली है जी, कितने एक्शन के, कितने जेईएन के, कितने एएन के, कितने बेलदार। इसके लिए आपने कोई लेटर भेजा जी ऊपर में मांग के लिए? और वो मीटिंग में कहते रहते हैं लेटर क्या भेजा, हम तो चीफ को बताते हैं, मैंने एडिशनल चार्ज के लिए भेजे हुए हैं। और एक बात और सुनो मुंडियो, हेलो भाई, मेरी बात सुनो ध्यान नाल। अगर आप हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो इसी मुद्दे को लेकर हम धरना लगाएंगे, आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन नहर में बंदरबांट जितनी हो रही है ये बर्दाश्त से बाहर है। आदमी नहीं है तो कौन संभालेगा जी? जो इतनी उपज देने वाली चाणक साहब ਇੰਨੀ उपज देने वाली नहर ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ नहीं है। चलो दूसरा सवाल। हमारा मकसद है कि पानी की चोरी ना हो और प्रशासन का आम जन में भय हो तरीके से। पानी चोरी पकड़वाते हैं, आज तक आपने एक पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वो खुले घूमते हैं। अगर
इत्तेफाकन से किसी का नक्के का विवाद आ गया तो जयन तुरंत भागता है, कोई नक्के वाला मुंडा काबू आ गया, बंदा इधर मुकदमा करवा दो, पानी चोरी वाले पे कोई मुकदमा नहीं होता। क्यों? अजय तो नहीं हुआ कोई चलान नहीं होता उनका, पूरा जी पूरा भाग ही जाता है। नक्के तो जाता है। मेरे साथ हुआ मुकदमा दर्ज हो जाए। एक मिनट बलविंदर जी, मुकदमा दर्ज हो जाए प्रधान जी, मुकदमा दर्ज होना हो जाए कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। एफआई दर्ज होगा फिर एविडेंस होना। अच्छा, चेयरमैन सहयोग करने को तैयार है, हर वक्त करता है। अभी तो रात को हम सहयोग करने को तैयार है। रात को ज्यादा पाइपें पकड़ी हैं, हमारी पाइपें पकड़ने का क्या फायदा हुआ फिर जब उनकी कार्रवाई नहीं होनी चोरों पे तो। आरबी में क्या हुआ था अब मुझे नहीं जी, एफपीवी मेन फीडर पर बहुत सारी रोज लगती है। आरपी वाले मैटर में क्या हुआ? शिवपुर से कखा रोज लगती है, अभी भी लगती है। शिवपुर से कथा अभी भी लग रही है। नहीं, दो चीजें वो आपने कहा था नहीं, वो दीवार सी बन जाएगी उसके बाद हल हो जाएगा। हाँ, चल रहा है। एफआईआर पाइप पकड़ने के बाद एफआईआर नहीं हुई, केवल एक आरबी के अलावा और कौन सा है जिसमें पाइप पकड़ी और एफआईआर नहीं हुई? बीबी एफ पर थी, बीबी पर थी, पकड़ी पहले हमारा अध्यक्ष मीनू ने पकड़ी। कोई और बकायदा वीडियो थी सर, टैंकर वाला मैटर हुआ था ना, वो तो पहले बहुत पहले बकायदा वीडियो थी पूरी, ऐसा ही नहीं और वीडियो के बाद किया सारा कुछ किया। उसके बाद आरबी के मैं बता दूं, आरबी में पकड़ी पाइप, उसमें अध्यक्ष की रिपोर्ट अलग, पटवारी की रिपोर्ट अलग और जेएन की रिपोर्ट अलग। क्यों अलग अलग थी? जो भी थी, मेरे पास कागज मंगाया तो मैंने कहा भी नोटिस लेकर सुन ले, अगर थाने वाले करते नहीं है। इसमें गए थे आपके गंदे पानी में, मना कर दिया उन्होंने, धक्के से करवाई। वो क्या, हमें तो एविडेंस चाहिए, आपकी रिपोर्ट ही गलत है, तो कोई एफआईआर कराने में तो करा देंगे, उसका कुछ होगा नहीं। नहीं, फिर अलग अलग क्यों आ रही है? बचाने के लिए, उसको पता नहीं किसने बचाने के लिए। और क्या? दो तो सरकारी आदमी है ना जी, पटवारी और जेईएन। मान लो अध्यक्ष वोटों के कारण गलत दे रहा है, मान ली, पटवारी और वितरण समिति अध्यक्ष तो साथ गया था, वहां का अध्यक्ष अलग कर रहा है, और पटवारी कह रहा है कि पाइप जिसकी बारी थी उसके 12 चिकनी का तो केस बनता था कि इसकी जगह यहाँ लगा दी, डिग्गी में पानी था, वो कह रहे हैं डिग्गी का नाम ही अलग है। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए नोटिस निकलवा दिया। जिसके नाम जमाबंदी है जी, उसके नाम हो जाती। नहीं, अरे चोरी वाली स्थिति हो ना, वो नोटिस दिया हुआ है एक्शन ने, मैं पूछ लूंगा स्टेटस में। नोटिस दिलवाया था, मैंने कहा सुन लो, उस हिसाब से एफआईआर कराओ। अब कितनी चोरियां पड़ी उन तक इसका ध्यान है। गिनती कोई नहीं। तो कितने में एफआईआर, कितनी कौन सी आपकी एफआईआर चलान तक पहुंची है, एक बता दो। किसी को सजा नहीं होगी ना जी, कोई डर पैदा होगा ही। देखो सजा तो वो आगे एफआईआर तक है, आगे तो पुलिस का काम है। एविडेंस देना आपका काम है। चलान तो होना, एविडेंस तो अपने ही देंगे ना। एविडेंस दोगे फिर चलान तक पहुंचेगी, डंग का चलान होगा। अगर एविडेंस नहीं दोगे तो बात करोगे नहीं। समेजा में एफआईआर हो गई, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं हुआ समेजा वाले में। एक बता दो ना, वो तो फिर पुलिस से पूछना पड़ेगा ना। तो कौन पूछेगा साहब? अरे मैं वो नहीं कह रहा, पूछ लेंगे पुलिस से। मतलब ये चीज मेरे पास, आप मेरे से पूछ रहे तुरंत नहीं होगा, तो पुलिस से पूछना पड़ेगा। मुकलावा थाने एसएचओ ने स्पष्ट मना कर दिया, समेजा में रात को चोरी पकड़ी, पाइपलाइन की वीडियो थी, सारा कुछ था। एसएचओ ने नहीं की, एफआईआर ही नहीं कर रहा। साथ में कलेक्टर साहब से बात कर लेता हूँ, इसके लिए तो डायरेक्शन दिलवा देते हैं। एसपी साहब से करो जी, नहीं कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरा विभाग यहाँ बैठा हुआ है कि छत के नीचे, गंगनहर के यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो पंजाब में क्या करेंगे? जे पुलिस कार्रवाई चोरी ते नहीं करती ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕੀ ਤਾਕਤ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਕਰੀ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਮੋਗਿਆਂ ਤੇ ਹੈਡਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਤੇ ਸਟੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਟੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੱਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ लिया जी। जिन्ना समस्या वो सब एससी साहब ने जवाब सुन लो। मैं बता दूं, आपकी बात सही है। स्टे के लिए हम भी, क्या होता है कि हाई कोर्ट में भी है, दूसरे चक है पूरा, दूसरे नाम से वहां डिसीजन करवाते हैं, लोअर कोर्ट में लेते हैं।
मैंने कलेक्टर साहब से डिस्कस किया था, उनसे डीजे साहब को लेटर लिखवाया भी 10-15 दिन पहले, मैं मिलके भी आया, उनसे रिक्वेस्ट भी करी, तो उन लोगों को उनका रजिस्ट्रार का लेटर भी बनाया कि ठीक है हाईकोर्ट तो हम लड़ लेंगे, कम से कम यहाँ तो स्टे नहीं मिले। तो उन्होंने बिल्कुल कह दिया मैं सबको कह दूंगा, आपके एक्शंस मिल लें। मैंने इनको कह दिया आप लिस्ट बनाओ, कंसर्न जिस भी कोर्ट में है उनके जज साहब से मिल लो, तो रिक्वेस्ट कर लो कि भाई जो सेम मैटर में हाईकोर्ट में डिसाइड हो गया, कम से कम उसको तो तुरंत डिसीजन करवाएं, जो भी नेक्स्ट डेट है। और प्लस फर्दर के लिए उनको कहे था हमारे को कम से कम सुने बिना स्टे नहीं, पर्टिकुलर मोगे और हेड के बारी वाले में चल रहे हैं, ਡੀਜੇ ਸਾਹਿਬ चल रहा है। ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ हाईकोर्ट तो यहाँ हाईकोर्ट तो हमें जाना, हाईकोर्ट कंट्रोल हो जाता है। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। वो भी मैं आपको मैंने मीटिंग ले रहा हूँ अभी, आज है मेरी 3-4 बजे साउथ नॉर्थ की, उन्होंने मेरा ये एजेंडा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। संतूर भाई जी मेहरबानी लिस्ट तो कराओ, सारी इसकी लिस्ट तो Monday ट्यूजडे तक लेना, मैंने मंगाई हुई है, आज ही मीटिंग है नॉर्थ की और साउथ की, कल रायसी नगर की। 9 महीने हो गए इसको बने हुए, पहले दिन इसको ये कहा था कि लिस्ट निकलवा दो, पहले दिन कहा था इसको। कईयों की आगे कंप्लीट नहीं आई, नहीं, गन्ने लिस्ट की आगे ਅਸੀਂ- मेरे पास 2 डिवीजन ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਲੈਨੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹਮਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਟੇਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੈਟ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੋਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦਵਾ ਦਵਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਟੁੱਟੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੇਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ पार्टी बन ही नहीं सकता आज। तो जवाब दावा तो जहां तक है हमने सब में दे दी। अब जो स्टे की बात है ना, तो कई बार क्या होता है कि स्टे टूटने का वो कागज हमारे पास आता नहीं, अब वो वहीं से वहीं जनरली क्या होता है कि हर डेट पे हम खुद नहीं, जब वकील रहते हैं वहां पर, अब वहां से वो कागज आया नहीं या किसी तरीके पहुंचे, उसमें डिले हो जाती है। अदरवाइज स्टे टूटने का पता होने के इम्प्लीमेंट हम तुरंत कर देते हैं। आप करनी जी पे 1 बीघा गन्ना नहीं है, और वो गन्ना पाइपें सहगल साहब बता रहे थे कब की बात है, तब से चल रही है। और मेरे ख्याल में वो गन्ना पाइप पे तो अब सतविंदर आज नहीं आया हमारे बीच, वो मीटिंग वाले दिन अपने बात भी करेंगे कि क्या इनकी जो गन्ना कमेटी है वो हर साल अप्रूव नहीं करती क्या उसको, तो फिर वो स्टे पर कैसे चल रही है। मैं बताता हूँ, जब मैं एक्शन था तब कमेटी में मैंने निर्णय करवाया, कम से कम ये लिख दो कि जो स्टे ले रखे हैं और नहीं करे तो हम उसका गन्ना नहीं लेंगे। हाँ, वो कर लिया, उस पे स्टे आ गया हाई कोर्ट से। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं फिर इसका मतलब एक सुनो, मैं अब कोर्ट का मैटर है, जब मैं एक्शन बता रहा हूँ, मैं 17-18 उसमें कमेटी को पार्टी नहीं बनाया जी, किसको? गन्ना कमेटी को। फिर कईयों में हमने क्लब कराया, फिर 1-2 में मैं कह रहा हूँ जी गन्ना कमेटी उसमें पार्टी है, वो तो है ही। तो फिर गन्ना कमेटी झगड़े ना जी उसमें। वो भी तो पार्टी, हम भी हैं, वो भी हैं। 2 में पार्टी थी गन्ना कमेटी, 2 के स्टेट खर्च हुए हैं। पार्टी सब में ही होती है गन्ने के मामले, गन्ना कमेटी रजिस्टर्ड है हाँ रजिस्टर्ड है, क्योंकि जवाब में ये जाता है कि सारे वही सैंक्शन होते हैं। तो कईयों में कलेक्टर साहब ने लिख दिया था, तो वो भी उन्होंने खारिज कर दिया, कलेक्टर को पावर नहीं है कमेटी। मैं पूछ रहा हूँ जी कि हर साल गन्ना पाइप इशू नहीं होती क्या? मतलब उसको इश्यू हर साल होती है, नहीं होती, हर जो साल चल रही है ना उसमें प्लस माइनस वाला होता है, बाकी जो चल रही है डिसीजन होता है। जब बस में इसका सर्वे उत्तर ही पे नहीं गन्ना समझ। नहीं आया, एक मिनट यार, या तो जब कम सर्वे होगी, पे गन्ना नहीं आया वो कैंसिल होंगी, होंगी ना, तो जहाँ गन्ना नहीं है वहाँ पर मंजूरी कैसे मिल रही है? मंजूरी नहीं है ना स्टे वाली, स्टे है, मंजूरी स्टे वाली नहीं में तो हमारे तो उसके तो साल का ही होगा प्रधान जी। साल में फिर ले लेंगे, गल तो ही है। नहीं स्टे तो कोई भी साल नहीं होता, 6 महीने होता स्टे तो। व्यवस्था बनाए रखे, कुछ नहीं लिखा। हमने ये भी बीच में किए थे क्लब करके भी, ये 1 साल के लिए सैंक्शन होती है। हाँ, नहीं अब कोर्ट है, व्यवस्था तो साल तक ही बनानी थी ना, साल तक तो उस बाद तो ਉਹਨੂੰ ਪਟ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। देखो अगर करनी उसमें जी लिखा होता है डिटेल इस फसल इस 330 वर्ष, कई बार कोर्ट का आता है मध्य फसल, हाँ तब तो हम कर लेते हैं। कई में सिंपल लिख दिया कि अग्रिम आदेश से इसकी व्यवस्था बनाए रखे, हम चाहे 2 साल 3 साल प्रधान जी करें। पर उसमें दे तो सकते नहीं। 300 जैसे करनी है फिर भी 5 वो से 3 4-4
मैं समझदा तेरी गल हूं, समझदा गल मैं समझदा गल मैं टेलना जाके विजिट की इसके लिए टेलना तो रायसेनगर की तो क्लब भी हो गई, वहां से गए थे एक्शन साहब। मैं यहाँ की भी करवा रहा हूँ और मीटिंगों में एजेंडे हैं, मंडे तक ये सारी आ जाएंगे। चलो एक सबसे मेन मुद्दा है अपना जो बहुत बीमारियों की जड़ खत्म कर सकता है, जो काफी समय से हम मीडिया में सरकार को लिख लिख के भेज रहे हैं कि जो पानी फ्लक्चुएट होता है उसको डालने के लिए पॉन्ड बनाया जाना चाहिए। प्लीज इतने गल ना करो, बाहर जाके ये गल करनी, इतने गल ना करो प्लीज। वो मुद्दा मुझे ध्यान है, मार्च में जब क्लोज होगा ना इसका दिन को सर्वे करके तब प्रपोजल बनाएंगे। अब बजट मीटिंग चल रही है ना, बजट मीटिंग चल रही है, इनमें इसमें डिमांड भी करके हैं। आज मांग रहे हैं एमएलए, आज सोना देवी का फोन आया वो था। तो दे दे, हमें क्या दिक्कत है। प्रपोजल तो तभी बनेगा किस लेवल तक जाना है, पूरा सर्वे होके जब ये अपने 20 दिन की बंदी होगी सर्वे हो जाएगा। प्रपोजल बनने में तो क्या है, लाइनिंग और वही तो एरिया तो बना हुआ है। लिंक को बनाना चाहिए, लिंक ही बने या इसको अपने को जो मेन फीडर है इसको ओवरहाइड करके। ओवरहाइड से कुछ नहीं होगा, वो तो पीछे से पानी लेवल में आ रहा है, ऊंचा तो जाएगा नहीं। हाइट बढ़ा लो बोली खाली रहेगी, नहीं अपने तो जाएगा जी, क्यों नहीं जाएगा? पानी कभी भी आपका चलता हुआ ऊपर नहीं घूमेगा, गेट वो तो ग्रेव से जाएगा। नहीं गेट 45 आरडी से चला पानी। हाइट करनी हेड दी आप मेरी बात सुनो संतवीर जी, ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬੰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੜਦਾ ਯਾਰ कहाँ चढ़ता है बताओ, कहाँ कहाँ चढ़ता है बताओ। आप केवल पौंड करके उसका लेवल रेस करोगे, हाँ लेकिन एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ आप दीवारें बढ़ा दोगे तो पानी उस लेवल तक नहीं जाएगा। उस लेवल तक एफएसएल तक जो भी गेट है वो भी एफएसएल तक ही बने हुए हमारे सारे, नहरें भी उसी डिजाइन। गेट तो दोबारा गेट उससे क्या होगा, वेल्डिंग हो जाएंगे जी। मैं कह रहा हूँ वेल्डिंग कर दो, उससे क्या होगा, 1 फीट 6 इंच नहीं, पर्टिकुलर एक रीच आपसे नहीं, एक मिनट, 1 फुट 6 इंच में बहुत पानी आ जाएगा जी। कितना लंबा फीडर है? वो कैलकुलेट कर लेंगे। तक स्लोप जाएगा ना, स्लोप भी तो आ रहा है। स्लोप आएगा, आप स्लोप कितना आएगा। ऊपर जाओगे, यहाँ जाके जीरो, इतना जीरो तो हर गेट पे करते ही है पौंड। आप नहीं, पौंड हमारा- नहीं कर दो तो पानी नीचे नहीं आएगा। नहीं नहीं सिंपल साहब है हमारा लिंक सवाल। के बिना नहीं होगा, लिंक के बिना नहीं होगा, हमें तो पॉन्ड चाहिए जी, जो वाइबल पॉन्ड हो, पॉन्ड कम से कम इतना पॉन्ड होना चाहिए। अगर एफ नहर आज खुली है और आज ही पानी कम होगा 400 क्यूसेक, 7 दिन तक नहर एफ चलनी चाहिए, कम से कम इतना पॉन्ड होना चाहिए। पौंड तो देखो लेवल से बनेगा, क्योंकि वो नहर भी ऐसे बनी हुई है। अपना क्या लेवल है, अपना एफएसएल से उल्टा जाएंगे, वो तो जहाँ टच करेगा पक्का बनेगा फिर वहाँ जी। वो तो लेवल आप बना लेना, पक्का बनेगी वो तो। नहीं बननी तो पक्की है, हाँ, कच्ची में पक्की तो क्या बनेगी, होगा, पक्की बनेगी। तो हो जाएगा साहब, वो तो बजट में ले ले भले ही, कोई इशू नहीं है। तो प्रपोजल अप्रैल में बनेंगे, वो मैंने लिख के भी दिया। आप भी आप ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਖਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। लेटर पैड से लेके ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ अपनी ਵਾਸਤੇ। गल समझो तुम तो जो स्टाफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ है वो आप हमें को सूची दे दो, मैं सरकार को लिख के भेज दूं, है ना जी। लेटर पैड कर दूं, मेल कर दूं, सीएम को मेल कर दूं, मंत्री को कर दूं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ जी। आज ही दे दूंगा। वो जो तो मेरे करने वाले स्टाफ जो नहीं है तो सबसे पहले तो स्टाफ मांगा जाए। जी जी स्टाफ मांगे तो अपना समस्या हल हो जाए। 60% तो उसी से हो जाएगी। जो असंतुष्ट है ना, आज किसान असंतुष्ट है, तो किस कारण से है? वेरिएशन के कारण। वेरिएशन से हाँ वेरिएशन। हाँ। अगर ये वेरिएशन नहीं तो और वो असंतुष्ट स्टाफ नहीं। के कारण है जी। इनका भी काम खत्म हो गया, अध्यक्ष जी का इनका भी हो गया, इनका भी हो गया। लेकिन ये रहना है, हमें पता है ये ह्यूमन नेचर है, खाना खाएंगे टॉयलेट जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये पानी है तो ये कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। जैसे बंदी आएगी उसमें भी किसान बोलेगा, दिक्कत तो आती है सर कम हो तो जाएगी उसके प्रॉब्लम। लिए अपने को व्यवस्था ऐसी बनाए कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जिसमें किसान को ये संतुष्टि हो कि कोई बात नहीं, मेरा पानी कम आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम ट्रांसपेरेंट। हम सब विधायकों को भी ये समस्याएं विधायकों को सारों को देगी जी। सिस्टम ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने स्काडा सारे दे रखे हैं। अब लेकिन बिना सूचना वो गलत देते, लिंक टेलीग्राफ अब क्या कर लेंगे। पौंड वाली का नाम रखो ना। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। मैंने समझ नहीं। अच्छा एक बात और है कि बहुत से नंबर जी, बहुत सी नहरें ऐसी हैं जैसे जेड है, बीबी है, जिनको पानी छोड़ने के उनका पौंड बहुत ज्यादा ऊंचा करना पड़ता है, क्रस्ट ऊंचा है। क्रस्ट ऊंचे है, उनके लिए कितनी बंदियां निकल गई, आगे बंदी आ रही है, उसका कुछ सोचा आपने? हेड गलत है। हेड जो हेड देखो, हेड गलत है, बीबी के लिए हेड चेक करा ले, हेड तो बिल्कुल सही है जी, क्रस्ट ऊंचा है। वो तो जो डिजाइन से बना हुआ है, उसकी सफाई कराने के बाद मैंने 15 दिन तेल चेक रही 12 हिस्से। इशू क्या होता है कि वो उस मेन हेड से थोड़ी पीछे से निकलती है, हल्का सा टूटता है, उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। मेन ये है कि जहां जो पीछे हैं उनके पौंड का ये रहे कि ये बिल्कुल जो भी मेंटेन रहे। एक ये इस इशू से कारण ही पिटती है। बीबी का सारा चेक करके रिपोर्ट भी भेज दी, 2 बार चेक करवा दी,
हेड बना हुआ सही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि चूंकि हेड आगे खिसक गया, वो दूर हो गया। वो सर सही क्यों है? इसलिए सही नहीं है। सही यार, एक मिनट, पौंड ਹੁਣ 9 समथिंग ਤੇ ਹੋ ਕੇ फिर भी चलती है जी। वही तो कह रहा हूँ, जो भी है ना, वो तो डिजाइन में भी जो लिया हुआ है, जब बनाया होगा, अब गलत उसको बनाया जी। नहीं देखो आगे चला गया ना वो। पर पौंड लेवल उसके लिए उस लेवल तक मेंटेन के लिए रिपोर्ट में है। अब आप दो चीज है, उसको चलो पौंड को क्या बेड से नीचे करेंगे, वो गेट डाउन हो जाएगा। नहीं क्रस्ट नीचे कर दो ना सर जी। मैं बताता हूँ आपको, करेक्ट, जो डिजाइन बनी हुई अभी बना है, हाँ, गलत बन गया मान लो। ਝਰੀਆਂ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਸਿਲੇਬਨ ਕੀ ਹੈਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੌਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਬੀਬੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੌਂਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਨ ਕੀ ਹੈਡ ਦੇ ਪੌਂਡ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 24 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। उसमें दिक्कत तो है, हाँ दिक्कत नहर है। पक्की बन गई और 24 मिनट में नहीं चलती, पौंड ही नहीं है वहाँ पे। अगर कोई अधिकारी उसमें पिच प्लेच में आ रहा है, वो बात अलग है। नीचे में नहीं आ रहा, वो तो पानी तो 12 इससे भी है। अब सुनो जेड का क्रस्ट और फार्म का ऊंचा है, ये तो आपको पता है, वो तो बंदी में हो सकता है ना। जेड का चेयरमैन कितने है? पहले इसकी करना है बीबी की, तो जहाँ तक मैंने रिपोर्ट देख ली डिजाइन, तो उस हिसाब से FSL से कितना पानी नीचे जाएगा। इशू है केवल पॉन्ड मेंटेन नहीं होता। अब जेड और फार्म में कहाँ दिक्कत है? फार्म में तो मेरे को पक्का नहीं पता, ये अध्यक्ष का है जी उसका। जेड का तो बंदी हमारी बात यार, तो जेड का तो मैं काश्तकारी हूँ जी, मुझे भी पूछ लो आप। जेड तो कालू वाला पौंड थोड़ा सा जेड था, तो जेड का तो मनी होंगे फार्म तो कालू वाला पर है। नहीं, फार्म का तो ये बता दे, मुझे नहीं पता भाई फार्म पे तो इसको चेक करवा रहा हूँ अभी मैं, ई माइनर पे तो कॉलोनियां कट गई। अब मैंने उसकी भी कमेटी फार्म तो आप उस दिन ये कह रहे थे कि इतना ज्यादा पानी ले रही है और अध्यक्ष कह रहा था कि मेरी टेल मर रही है। फिर मैंने बढ़वा भी दिया एक बार, मैंने कहा इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ तो डिजाइन में है। सफाई देखो दो चीजें, फिर मैंने से पूछा सफाई है, मन भी गई है साहब। आगे चेयरमैन साहब अपना लक्का ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਪੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੜ संतरी जी को मान रहे हो तो गल ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ सही तो करा दो ना जी। आप मेरी बात सुनो, तो वो तो प्रपोजल लेंगे प्रधान जी, फिर ही सही होगा। ਸਾਡੇ वाली थोड़ी भी काम तो वही जैसे होगा। बीबी है ना वैसे जेड है। हाँ, कोई चीज गलत तब होती है कि जब उसमें पानी कभी गया ही नहीं। इसका तो हल है जी, जेड का तो। सुनो, जेड पे भी 12 इससे पानी जाता है। नहीं नहीं साहब, हल तो बता सुनो सही। अब उसमें क्या होगा, नीचे करेंगे, हमें वो पॉन्ड लेवल मेंटेन कम करना, मत नीचे करो जी। नहीं क्रस्ट को नीचे करेंगे। भाई डिजाइन में तो वही जाएगा ना कि भाई कितना पॉन्ड रहता है। एक और तरीका है, इसलिए एक और तरीका है, या तो आप सब बड़ी गेट लगा दो, या पहले की तरह कड़ियां लगा दो। ये प्रपोजल है कि वहाँ या क्रॉस कड़ियां रेगुलेटर होना, क्रॉस रेगुलेटर, ये जस्टिफाइड, रेगुलेटर हो जाएगा, इसको और बेनिफिट मिल साथ में पौंड और बढ़ जाया करेगा जी। अच्छा पॉन्ड बन जाए। पौंड बढ़ जाया जो आप करेगा। बात कर रहे थे, जो जमीन इतना फ्री बोल रहा ना प्रधान जी। समझ गया मैं। छोटा गम नहीं ये प्रपोजल समझ गया मैं, बढ़िया अपन पौड़े को बन चुका, बढ़िया। क्रॉस रेगुलेटर का प्रपोजल जरूर भेज सकते। कौन कौन से हैं? पानी ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੋਰੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚ ਹੀ ਹੈ। गल तो मुकर ਉਹ ਗੱਲ सही कह रहे हैं। होगा ग्रुप होगा सारा। नगर में जब करनी थी में तो पानी आ गया, करनी थी खुल गई ना, बंद खुल गई, करनी जी में बंद है और जीजी में वो भी बंद है। भोर में किए लगे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सब कल ही पानी छूटा है करनी जी में, तो चल रहा था पूरे 7 दिन। अब कुछ नहीं, सारा कुछ जानना क्या सर, ठीक, हाँ 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 कल आऊंगा मैं, मीटिंग भी है। तो आप अभी आवाज कट रही है, मैं अब भी साहब वो आवाज कट रही है, मैं आपको आधे घंटे में करता हूँ, फिर मुझे डिटेल बता देना, हम करवा देंगे। ठीक इसी वाली गल से कर ठीक ठीक है सर, ठीक है। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ, ਵੀ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਯੂ ਫॉर योर ਡਿਊਟੀ।
फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है ना जी। दूसरा, जितने मुद्दे डिस्कस किए हैं अपन ने, वो मुद्दे आपने कुछ प्रपोजल वगैरह ले लिए, तो जो प्रपोजल भेज रहे हो आप हमें क्या क्या भेज रहे हो उनकी लिस्ट दे देना। इन्होंने मोगो की लिस्ट मांगी है, वो दे देना, ठीक है ना। बाकी हाइड्रोलिक सर्वे का रह गया, जो कॉलोनियां कटी हैं उनका पानी काटा, पटवारी ने काटा कि मोगे दुरुस्त नहीं हुए। एक जो पेड़ काटे गए हैं नहरों के साइड से, उनका रेवेन्यू कितना हुआ, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, और लाइनिंग में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वन विभाग द्वारा, उस पर आप क्या कर रहे हो। तो आपको ये बता दूं, पहले तो पेड़ वन विभाग ही काट रहे हैं, रेवेन्यू उनके पास है। ठीक है, लगाएगा कि पेड़ वन विभाग, ठीक है। अब हमने एग्रीमेंट में ये किया, जब पेड़ लगाएगा कंसर्न एक्शन की कंसेंट से ही लगाएगा, अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स जो पेड़ लगाने जगह हम बताएंगे, उसके बिना लगाएगा तो हम उसके कार्रवाई करेंगे। ये हमारे एमएलए जो अपने आप हो गए हैं जी, जो लाइनिंग के अंदर हो गए हैं। सुनो अभी की बात है, जो कट रहे हैं उसके, जो लाइनिंग में उगे हुए हैं, अभी हम उनको पेड़ सारे हैंडओवर कर रहे हैं। करीब 90,000 पेड़ हैं जो कट रहे हैं हर नहर। जो वन विभाग के खुद के हैं उसमें तो दिक्कत आती है, जो हैंडओवर उनको कर देंगे वो तो वो काटेंगे, नहीं करेंगे वो हम काट लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब जहां तक तीसरी चीज रही आपकी कॉलोनियों की बात, कॉलोनियों के लिए पूरा डिस्कस करके कलेक्टर साहब से भी लेटर लिखवा दिया, मतलब यूआईटी से तो लिस्ट आ गई। पानी तब काटेंगे, पहले जो उन्होंने हमारे यहाँ कृषि से अकृषि परिवर्तन करते हैं, हम पहले अपना सीसी स्टेटमेंट दुरुस्त करें, फिर आउटलेट के लिए भेजेंगे। प्रधान जी मेन गल करो, नहर ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ, और बुला के एससी साहब ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। उससे क्या होगा, फरवरी में नए आएंगे। अरे साहब महीना 2 महीने के खड़े ये हैं सारे देखो, जो चीज एग्रीमेंट में नहीं है खिंच दो जो नो ਤੁਸੀਂ खींच ले, वो वैसे खींच लेंगे। आप दोनों ये चीजें कर दो, वो कर दो, एग्रीमेंट पैसे में बढ़ाओ। ऐड तो कर लो, जैसे फोन की अगर समस्या आप- होती है, में करेंगे क्योंकि अभी आई कार्ड बन गए, वहाँ पे वो सारा आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा शक्ति होगी वो हो जाएगा, मेरा मतलब ही नहीं। खिंच लो जी। नहरा 6:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਆ ਦੇ ਦੋ जी जी देखिए वो ये मान लीजिए ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। मैं चाह करता हूं, मैं जाऊंगा ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ ਕਰਦਾ ਸਮਝੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंची है, अगे मैं हिंदी च बोलूंगा। हैरानी वाली बात है, 6 एजेंट चाहिए और 1 है, 3 एजेंट चाहिए और 1 है। मेरा सवाल प्रशासन से भी है और सरकार से भी है कि जो जहां पर जेएन आता है वो हट क्यों जाता है। क्या पहले यह बहुत मलाई खाने को मिलती थी, अब मलाई मिलनी बंद हो गई, हिस्सा पत्ता बंद हो गया, इसलिए या कोई और कारण है। क्योंकि मेरे को मौजूदा सरकार का जो सिस्टम है पता चला है कि ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल डिजायर चाहिए। जहां ने कर्मचारी ने जाना है वो डिजायर वहां से लेके आएगा, और जहां से कर्मचारी को जाना है वहां का एमएलए भी सहमति देगा कि आप इस अधिकारी को मेरे यहाँ से अपने यहाँ ले जा सकते हो। अगर राजकुमार गौर जी जंगड़ ते कुन्नर साहब तुहानू बहुत पुराना तजर्बा है, तीजी बारी एमएलए बने हो, मंत्री रहे हो, सरकार तुहाडे बड़े डूंगे हथ है। गौर जी तुहाडे बड़े डूंगे हथ है, जे हथ डूंगे ना हुंदे ते बजट ना आउंदा। इस करके हथ जोड़ के बेनती है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਪੌਂਡ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, 20 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦਰਬਾਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਬੇਲਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਏਐਨ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਗਾ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੀਗਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੌਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੌਂਡ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।